ओके चलिए so we'll start the session. तो ये this is a basically Python class, right? The first class on Python. So introduction to Python. So first let me write down what exactly we are discussing in this particular session. ठीक है, तो हम लोग उसको पहले clearly discuss कर लेंगे कि हम लोग क्या क्या discuss करें. तो of course we are going to talk about Python. Okay, basically Python, a programming language. Basically it's a programming language, but in detail we have to discuss, like, what is Python and why exactly Python. So as a data analyst, data scientist, why do you have to learn Python? Okay, so in simple word, what is Python, why Python, and when we are talking about why Python, the features of Python also we'll talk about. Okay, and how exactly you have to learn Python. Okay, so particularly from the data analytics point of view, we are going to talk about it. Okay, so first let me discuss some basic. I think you heard many times that Python is very famous, Python is very important for a data scientist, for a data analyst. ठीक है ना? Yes. तो पहला ये क्वेश्चन आता है कि मतलब चलो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल के व्हाट इज पाइथन, उसको हम लोग सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे. तो हियर इटसेल्फ आई हैव रिटन दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पर विल टॉक अबाउट व्हाट इज पाइथन. बेसिकली पाइथन इज ए हाई लेवल okay, high level open source, okay, a high level open source general purpose, okay, programming language, okay, general purpose programming language. So I'm trying to make it very simple actually. तो इसका मतलब क्या है, what is the meaning of high level? High level का मतलब ये है कि मतलब it is like a simple, very close to human language actually. Okay, तो मतलब simple, easy. The commands are like simple English words. Okay, commands are like follow English like words, we have this low level language. Low level languages are very close to hardware actually. Okay, so for example, if you look at low level languages, low level computer programming languages, but they are very close to computer hardware. Okay, very close to computer hardware. So that means the example is that assembly language, and this assembly language is basically processor dependent. With every processor, the commands may change, but high level languages are not processor dependent. Okay, तो ये बड़ी सिंपल है. क्या हाई लेवल का मतलब क्या है? तो पहले तो मैं एक सिंपल बता, हाई लेवल मतलब which is very close to human language, English like words, simple language. Okay, सेकेंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है? मतलब अभी यहाँ पर ओपन सोर्स मतलब ये इट रिक्वायर्स अ लाइसेंस, बट दिस ओपन सोर्स लाइसेंस, तो मतलब आपको सेपरेटली यू डोंट नीड टू पे फॉर इट, लाइक, राइट. अब इसमें ये बोल सकते हैं कि आप इसका जो लाइसेंस है, मैं उसका डिटेल बोलूंगा मैं आपको. तो ये जो लाइसेंस यानी ओपन सोर्स का जो लाइसेंस है, मतलब इट डजंट नो नीड टू पे, इट्स नॉट अ कमर्शियल, लाइक, so no license fee actually, so no fee actually, matlab that means it is the free to use actually, but of course there are certain restrictions, certain guidelines you have to follow. ठीक है, तो ओपन सोर्स, और ये जो इंफॉर्मेशन है आपको ओपन सोर्स की जो यहाँ पर है, ये ने python.org पे पूरा मिलेगा. यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट है python.org. ओके, सो यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. एंड जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस, तो Python is not designed for one single purpose. It is not designed for only for data science or data analytics, or it is only for web development. नहीं, तो मतलब multiple use cases. Okay, for multiple use cases. तो यानी for
मल्टीपल यूज केसेस, मतलब मल्टीपल यूज केसेस का मतलब एग्जांपल, यू कैन डेवलप general, any business application, software, any software application you can develop, or web application you can develop, web application you can develop. Okay, you can develop a game actually. Okay, आपकी तरफ से आवाज है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप अपना माइक को म्यूट करिए, म्यूट योर माइक. ओके, तो बेसिकली यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर. ओके, तो मतलब साइंटिफिक एप्लीकेशन, यू कैन डेवलप scientific scientific applications. Okay, and plus of course data analytics. For data analytics, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि data analysis, machine learning, AI, artificial intelligence, ये सारे तो multiple use cases है, तो general purpose है. It is not, but it is very famous, popular for data science, AI, data analytics के लिए बहुत famous हो गया है. Okay, it has become the number one. ये एक बात है कि now number one programming language. Okay, number one programming language for data science, और आप ये बोल सकते हैं analytics and AI worldwide. तो आप यानी मतलब कोई भी रिसर्च बेस यानी रिसर्च पे देखेंगे, कोई भी रिसर्च जहां पर भी रिसर्च और ग्रुप्स है, the companies, organizations, whether it's Microsoft or Google or Meta, तो वहां पर आप लोग पाएंगे कि पाइथन, दे आर यूजिंग पाइथन एक्चुअली. ओके, तो पाइथन इतना यानी पॉपुलर हो चुका है, मतलब इन द डेटा साइंस, एनालिटिक्स, एआई की दुनिया में. ओके, तो ये तो कंफर्म्ड है. ओके, और दूसरा यहाँ पर ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि भाई जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मतलब द लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. द लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो द लैंग्वेज in which we communicate or which we can communicate with the computer. तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते. अब यहाँ पर अगर वर्ड है प्रोग्राम, अगर मैं बोलता हूँ प्रोग्राम, सिंपल डिफाइन थोड़े टर्म्स करेंगे. प्रोग्राम मतलब आप प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, अगर आप बोले व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑफ कोर्स व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स बोल सकते हैं, सेट ऑफ कमांड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है. और अगर आप बोले सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो कई कंप्यूटर प्रोग्राम मिलके क्या बनेंगे, एक सॉफ्टवेयर बोलेंगे. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर बोले आप व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप बोले MS ऑफिस या व्हाट्सएप, तो ये पूरे सॉफ्टवेयर है, दे आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. तो कई प्रोग्राम जाके क्या बनेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनेगा. और एक कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई इंस्ट्रक्शन जाके एक प्रोग्राम बनेगा. तो वन प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शन एंड अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. ओके, और एक वर्ड यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम की वजह कोडिंग भी बोल देंगे. कोडिंग तो मतलब कोडिंग मतलब इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कमांड्स. तो कोड्स यानी मतलब, यानी कोडिंग मतलब वर्ड कहाँ से आया, कोड्स, कोड यानी कोड वर्ड, यानी मतलब कोडिंग का वर्ड है, एक कोड वर्ड है, यानी कोड वर्ड यानी मतलब कोड वर्ड विच इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन. ओके, एन instruction which computer can understand. Okay, computer can understand. तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कोडिंग, यानी मतलब तो set of instructions, set of coded words which only computer can understand is called coding. तो computer language, what is coding, यानी computer language. Coding is what computer can understand. Okay, और कोडिंग एक जनरल वर्ड है, कोडिंग मतलब एक जनरल वर्ड है. तो आप जो भी पाइथन में करते हैं वो कोडिंग बोलेंगे, जावा में भी जो करते हैं वो कोडिंग बोलेंगे. ओके, तो कोडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो कंप्यूटर लैंग्वेज आप यानी
कंप्यूटर लैंग्वेज बोलो आप, व्हाट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बोलो आप, तो आप यानी मतलब फॉर एग्जांपल पाइथन है, जावा है, C++ है, ओके, ये सारों में आप क्या करें, यानी मतलब यू आर डूइंग व्हाट, कोडिंग, या आप बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, सिंपल। तो ये वर्ड कोडिंग, प्रोग्रामिंग, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये पहला पाइथन का पार्ट में डिफाइन करा आप लोग को कि हाई लेवल ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें कि पाइथन क्या है, यानी मतलब, तो देखिए पाइथन बेसिकली यहाँ पर क्या है, पाइथन इज एन इंटरप्रिटेबल बेस्ड लैंग्वेज। ओके, एन इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्रेटर? तो कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते ना, तो वो इंस्ट्रक्शन को चेंज करने वाला, कन्वर्ट करने वाला कोई ना, तो वो इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पर आप दो चीजें समझ जाओ कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है। मतलब तो पहले ये आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। मतलब व्हाट इज ए कंपाइलर, एंड उसके बाद फिर एन व्हाट इज एन इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, मतलब पूरा जो आपके जो प्रोग्राम है ना, उसको पूरों को कन्वर्ट करता मशीन कोड में एट ए टाइम एक्चुअली। ओके, तो ये इन्हें क्या कहता है, मतलब बेसिकली ट्रांसलेट्स द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ओके, इनटू मशीन कोड, मशीन कोड बोलो आप, 0-1 बाइनरी बोलो, तो सारे को यानी ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ओके, तो एट ए टाइम करता है ये इंटरप्रेटर क्या करता, यानी ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ओके, ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो ये इसकी वजह से क्या होता मालूम, आप ये यहाँ से आप समझ जा सकते हैं, ये क्योंकि एट ए टाइम कर रहा है, ये फास्ट है, और यहाँ पर स्लो है। तो यही पाइथन का प्रॉब्लम, पाइथन का जो डिसएडवांटेज है बोलते हैं ये कि बिकॉज पाइथन इज बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर, तो वो स्लो है। लेकिन मैं आज बता दूं आपको, पाइथन यानी में इतने सारे ऐसे फीचर्स आ गए कि पाइथन हैज बिकम वेरी फास्ट आल्सो। अभी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, तो देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स आर देयर नाउ, पाइथन हैज बिकम ए वेरी आई कैन से रीजनेबल फास्ट। बट कंपेयर टू C++, जावा, थोड़ा सा पाइथन में परफॉर्मेंस का वो है, लेकिन अदरवाइज नाउ वो उतना यानी कोई सीरियस और कोई उतना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो भी नहीं है, मतलब मैनेजेबल है, मतलब। ओके, तो दैट इज आल्सो नॉट इशू। वेयरएज जावा, C++ ये प्योर कंपाइलर बेस्ड है। ओके, और इंटरप्रेटर का अपना एक और एक एडवांटेज, आप एक एक कमांड, इंडिविजुअल कमांड इमीडिएटली रन करके देख सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना बहुत अच्छा भी है। ओके, तो और बिकॉज ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, वो यानी इट इज गुड फॉर स्क्रिप्टिंग, है ना। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या होता है मालूम, आप एक सेट ऑफ कमांड्स लिखे, कोई यू वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑटोमेशन ना, तो स्क्रिप्टिंग बोलेंगे। तो वो स्क्रिप्टिंग का भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन को ये भी बोलते हैं कि स्क्रिप्टिंग बेस्ड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को ये भी बोल सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग यानी मतलब एक लो लेवल कोडिंग बोल सकते हैं आप, यानी मतलब लो लेवल बेसिक्स कोडिंग। तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक सिंपल कोड लिख के आप कोई भी एक यानी टास्क को ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कई चीजों को हम लोग ऑटोमेशन करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग। तो उसके उस तरह से भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, और पाइथन के जो कमांड्स रहते हैं वो डायनेमिकली टाइप, स्टैटिक टाइप। तो डायनेमिक, स्टैटिक, इसके बारे में मैं बाद में और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जो पाइथन के यानी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल्स को डेटा टाइप नहीं देते, तो स्टैटिक, डायनेमिक, तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिर और एक बात यह आती कि पाइथन में प्रोग्रामिंग जो कोडिंग का स्टाइल है क्या है, मतलब ओके, पाइथन का कोडिंग स्टाइल है, मतलब तो हर एक लैंग्वेज का अपना कोडिंग स्टाइल होता। ओके, कोडिंग स्टाइल, तो कौन से स्टाइल में पाइथन सपोर्ट करता। तो ये तो पाइथन का कोडिंग स्टाइल की बात करें हम लोग। तो
डिफरेंट कोडिंग स्टाइल क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कोडिंग स्टाइल्स आर देयर, डिफरेंट कोडिंग स्टाइल। तो हमारे यानी अलग अलग स्टाइल्स है। एक है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल, ओके प्रोसीजरल। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्टाइल है। और तीसरा है प्योर फंक्शनल, फंक्शनल। ये तीन पूरे वर्ल्ड में यानी स्टाइल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए तो सी लैंग्वेज, सी क्या है मालूम आपको, ये प्योर प्रोसीजरल है, यानी प्रोसीजरल, प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल में क्या कर सकते हैं मालूम आप, डायरेक्ट आप कोड लिख दो, यानी मतलब आप इंडिविजुअल कमांड्स, यानी कोड मतलब आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कमांड्स बोलो, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कमांड लिख दो। और अगर आपको इफ यू वांट टू राइट सम कोड एज ए सिंगल पीस, तो इसके अंदर एक फंक्शंस, यानी फंक्शन मतलब ग्रुप ऑफ कमांड्स, वो विल रन एज ए यूनिट ऑफ कमांड। तो यानी सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, सेट ऑफ कमांड्स एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट के जैसा। तो यानी आप डायरेक्ट कोड इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं या कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। इसको मैं आपको बाद में और आपको डिटेल में आपको समझ में आएगा। और अगर आप देखिए सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस और जावा जो है ना, वो प्योर क्या है मालूम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हम लोग जो भी प्रोग्राम का जो कोड लिखते हैं ना, तो उसका स्टाइल क्या है, ऑब्जेक्ट में रहता, यानी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, क्लासेस, ओके। तो उसका स्टाइल यानी मतलब क्लासेस, हर कोड को क्लास के अंदर डाल देते, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब वो मैं बताऊंगा आपको बहुत आसानी से, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप हम आसानी से समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं उसको। तो सी प्लस प्लस, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो सी प्लस प्लस ये है। और एक लैंग्वेज है इसका, वो वेरी फेमस स्काला। स्काला क्या है, प्योरली फंक्शनल है, फंक्शनल, जहां पर यानी प्योर मैथ फंक्शन, प्योर मैथ फंक्शन, हर चीज आप प्योर एक मैथ फंक्शन में लिखते हैं आप, ओके। लेकिन अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर पाइथन का प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है मालूम, मिक्स, मतलब मिक्स ऑल, इट सपोर्ट्स ऑल स्टाइल, ओके, ऑल स्टाइल्स। तो आप पाइथन का कोड जब पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो आप प्रोसीजरल स्टाइल में भी यानी प्रोसीजरल में भी लिख सकते हैं, प्योर क्लासेस में भी लिख सकते हैं, या प्योर मैथमेटिकल फंक्शन में लिख सकते हैं। तो इट सपोर्ट्स ऑल स्टाइल्स, ओके, इट सपोर्ट ऑल स्टाइल्स। तो वो कोडिंग का स्टाइल होता। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्ट प्रोसीजरल में भी लिख दे सकते हैं। तो कब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज गुड, व्हेन इट इज प्रोसीजरल, और व्हेन टू गो फॉर प्योर मैथमेट यानी मैथ फंक्शन, फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसका भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके, वो भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो पाइथन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है देखो पाइथन में, ओके। तो ये ठीक है ना। तो अच्छा, मैं अभी तक जो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपका थोड़ा फीडबैक कैसा लगे, मतलब इज ओके, आर यू पीपल एबल टू फॉलो मी? यस सर। Yes, sir. एवरीबॉडी? यस सर। सर पाइथन और आर लैंग्वेज में क्या फर्क है? कौन सी लैंग्वेज? आर लैंग्वेज नहीं, आर भी लैंग्वेज एक पाइथन की जैसी है, पाइथन और आर में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके। तो यानी मतलब अब दो चीज़ें रहता है, मतलब यानी अब दो में डिसीजन लेना रहता है, इधर पाइथन या आर लैंग्वेज। अब दोनों में कैसा है बोले तो, यानी अब नंबर वन पाइथन ही है। तो अगर आप, मैं वो बताने वाला ही हूँ आपको, यानी अगर पाइथन बहुत ज्यादा क्लोज, किसके ज्यादा क्लोज में बोले तो वो आर लैंग्वेज के ज्यादा क्लोज में है, ओके। तो यानी यानी मतलब ये है कि पाइथन में आपको, यानी अगर आप ये बोले, आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो पाइथन is very close to R programming language, is close or like R programming language. तो R भी क्या है, R भी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इट इज वेरी पॉपुलर, लाइक बहुत पॉपुलर है, जिस तरह से पाइथन है पॉपुलर है। बट आर क्या है, ज्यादातर ना स्टैटिस्टिक की दुनिया में बहुत फेमस है, यानी मतलब तो स्टैटिस्टिशियन दे प्रिफर आर यहाँ पर। बट पाइथन में आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी व्हाट यू कैन डू। अच्छा एक बात है, जो व्हाट यू कैन डू इन पाइथन यू कैन डू इन आर, व्हाट यू कैन डू इन आर यू कैन डू इन पाइथन। तो आपको दोनों नहीं, एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोनों में से। अगर आप पाइथन में अच्छे हो गए तो ऑटोमेटिकली आर भी सीख ले सकते हैं, अगर आर में अगर आप अच्छे हो तो पाइथन भी सीख ले सकते हैं। तो मतलब डेटा साइंस और एआई के लिए दोनों भी फिट है। लेकिन अगर आप यानी स्टैटिस्टिक्स बोले, स्टैटिस्टिक्स में प्रिफर्ड ज्यादा क्या बोले तो आर है। तो आर को, क्योंकि आर वाज डिजाइन फॉर स्टैटिस्टिक्स,
बट यू कैन डू स्टैटिस्टिक्स इन पाइथन आल्सो। ओके, तो ज्यादातर स्टैटिस्टिक के लिए आर प्रिफर करते हैं, और मशीन लर्निंग एआई के लिए यानी ओके मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आप आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए पाइथन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो अगर आप मिक्स अब डेटा साइंस अगर आप वर्ड अगर बोले दोनों मिक्स, अगर डेटा साइंस डेटा एनालिटिक की बात करें तो नंबर 1 प्रीफर तो पाइथन है। ओके, और ओनली स्टैटिस्टिक की बात करें तो आर है, क्योंकि आर में आप स्टैटिस्टिक्स आराम से रन कर सकते हैं, तो उसमें पूरे यानी आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपको जैसा कि मीन मोड मीडियन से लेके स्टैंडर्ड डिविएशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर के जितने भी टेस्ट वगैरह करना है आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर इनफैक्ट आप आर सेल भी सीख ले सकते हैं। ओके, तो आर बहुत क्लोज है पाइथन से, और आर भी क्या एक जनरल पर्पस, वो स्टैटिस्टिकली फेमस है बट इट्स ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम लाइक पाइथन। लेकिन अगर आप मेरे को बोले लर्निंग कर्व, तो लर्निंग कर्व पाइथन में कम है, नहीं मतलब पाइथन इज मोर इजियर देन आर। ओके, और एक लास्ट वर्ड ये था कि पाइथन में सारे वर्ड अलग अलग लिखा लो आप लोगों को इजी समझ में। दूसरा है कि पाइथन को क्या बोलते हैं मालूम, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके, पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि आपको यानी मतलब यानी आपको यानी एडवांस में उसका डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब, तो नो नीड टू स्पेसिफाई। अब इसका एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, तो अब ये मैं यानी मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग डायनेमिकली टाइप। और सबसे मोस्ट सर इंपॉर्टेंट आर क्या है, का सर आर का बोलिए। कोडिंग स्टाइल पाइथन के जैसा ही है क्या? मिक्स टू ऑल टाइप? हाँ मतलब थोड़ा अलग है, बट उतना जितना पाइथन का आसान है उतना नहीं है। तो आर का थोड़े सिंटैक्स अलग अलग है, तो इसलिए मैं खुला आपको ये वो सिंपली बोला कि पाइथन बहुत इजी है कंपेयर टू आर सीखने के लिए। तो ओके। लास्ट एक बात बोलता हूँ, ये वर्ड है यहाँ पर, आपका आंसर यहाँ पे देखिए, द मोस्ट यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ओके, द मोस्ट यूजर फ्रेंडली, ओके यूजर फ्रेंडली या डेवलपर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, ओके इजी टू लर्न, फन, ये पाइथन की स्पेशलिटी है। ओके, एंड यू कैन डू स्मॉल थिंग्स टू एडवांस थिंग्स इन पाइथन, आप जो चाहे पाइथन में कर सकते। तो अगर आप पाइथन को अगर अच्छा बना लिए तो आप यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइथन। ओके, तो आप पाइथन में डेटा एनालिसिस, अगर अगर हम पाइथन में हम अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो भाई हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं फ्रॉम डेटा साइंस डेटा एनालिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पर देखिए पाइथन को आप कैसा यूज करेंगे, ना यूज करेंगे। ओके, एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। तो हर एक जना अगर डेटा इंजीनियर है तो वो भी पाइथन यूज कर सकता है, डेटा इंजीनियर भी। ओके, डेटा इंजीनियर अगर कोई डेटा इंजीनियर है तो वो कैसा पाइथन को यूज करेंगे। ओके, डेटा इंजीनियर। तो अगर डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं हम लोग, डेटा एनालिस्ट की, तो यहां पर मैं बता देता हूँ पाइथन में। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट पाइथन को क्या यूज करेगा, मतलब डेटा को कैप्चर करना, डेटा को अलग अलग सोर्स से लाना। ओके, तो यू कैन से कैप्चरिंग, गैदरिंग डेटा, कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी मतलब आप डेटाबेस से, फाइल से, इवन वेबसाइट से, जिसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको। अगर कोई वेबसाइट से डेटा को लाने के वेब स्क्रैपिंग बोलेंगे आप। तो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज यू कैन कैप्चर डेटा, कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डेटा बेसिस, फाइल्स। तो आपको आसानी से आप डेटा फेच कर सकते हो डेटा बेसिस से, फाइल से, वेबसाइट से, यूजिंग पाइथन। ओके, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं आप, डेटा क्लीनिंग।
आप बोलेंगे मैं ये चीजें एक्सेल में भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम, साइज की बात है। इफ यू गॉट a huge volume of data ना, तो एक्सेल इज नॉट a right choice, but definitely Python is very right choice, okay? तो आप इस तरह के यानी डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। और डेटा ईडीए, ईडीए मतलब ईडीए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी आप उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ओके? यानी डेटा को यानी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस करो आप, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप। यू कैन कन्वर्ट डेटा इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स बना सकते हैं आप, ओके? और एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक यू कैन अप्लाई वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ओके? कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं आप डेटा को समझने के लिए, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ डेटा इज स्टैटिस्टिक्स। तो आप यानी वो आर लैंग्वेज में नहीं बल्कि पाइथन में भी आप स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, ओके? तो एज ए डेटा एनालिस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं, ओके? तो डेटा एनालिस्ट में मेन क्या है, डेटा कैप्चर करना, क्लीनिंग करना, फिर एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन करना, राइट? विजुअलाइजेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब राइट, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस। तो और आप यानी यानी डेफिनेटली आप उसको डेटा के अंडरलाइंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स को आप आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, ओके? तो एज ए डेटा एनालिस्ट, अब डेटा एनालिस्ट का काम यानी आप दूसरे टूल भी यूज करेंगे, यू विल बी यूजिंग एसक्यूएल, और यू विल बी यूजिंग लाइक पावर बीआई, डैशबोर्ड बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको पाइथन भी करना पड़ेगा, ओके? तो ये सारे थोड़े एग्जांपल दिया मैं पाइथन के लिए कि आप पाइथन में यानी पाइथन से आप डेटा पे क्या क्या काम कर सकते हैं आप। तो ये जस्ट थोड़े एग्जांपल्स हैं, हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े पॉइंट्स डाल दिया मैं। और डेटा साइंटिस्ट जो भी डेटा एनालिस्ट कर सकता है वो भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या कर सकता है एज ए डेटा साइंटिस्ट, एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आप बोलेंगे एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक में क्या आएगा, एडवांस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वहाँ आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप यानी फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, कई टेक्निक है इसमें, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांस फोरकास्टिंग, ओके? प्लस मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एमएल, मशीन लर्निंग टेक्निक्स बोलो आप, मशीन लर्निंग के कई टेक्निक्स है, या उसको एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। ये कई के लिए होता, फॉर प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं, मतलब। तो यहाँ प्रिडिक्शन में मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रिडिक्टिव मॉडल्स, यू कैन बिल्ड फ्यूचर प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना, मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग बोलो, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बोलो, तो यानी एडवांस में टेक्निक में मॉडलिंग आ जाती, प्रिडिक्टिव मॉडल्स बन जाते, ओके? और प्लस आप यानी डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग एक एआई का ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है। मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर आपको खाली, जैसे कि एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत पावरफुल टेक्निक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी मतलब टीचिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। आप एक ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने के लिए कैसा समझना कंप्यूटर, उसको वो सिखा सकते हैं आप, एनएलपी सिखा सकते हैं। तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड कैन गिव आंसर। एक पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं आप, चैटबॉट बना सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, व्हाट पीपल आर सेइंग, उनका जो मैसेज रहता है, ट्विटर्स कोई ट्वीट करे तो वो लोग वेदर इट्स ए मैसेज इज गुड और बैड, वेदर इट्स ए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पूरा एनएलपी का पार्ट आ जाता, मतलब, ओके? तो यानी इस तरह से एज ए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, पाइथन का, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन, ओके? तो ये थोड़ी चीजें मैं मेंशन कर दिया यहाँ पर। अगर कोई somebody is working as a data engineer फॉर एग्जांपल, तो वो भी पाइथन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एज ए डेटा इंजीनियर यू कैन बिल्ड डेटा पाइपलाइंस क्या होते हैं मालूम? इसको डेटा पाइपलाइंस को ETL पाइपलाइंस भी बोलते हैं, डेटा पाइपलाइंस को, यानी फुल फॉर्म यानी ETL पाइपलाइंस भी बोलते हैं, ओके? ETL पाइपलाइंस, तो ETL का फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये बेसिकली एक जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट करना,
फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और लोड करना, ओके, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो यानी पाइपलाइन मतलब क्या है, वो ऑटोमेशन हो जाता है, मतलब कंटिन्यू एक पाइपलाइन बन जाती है। जैसे कि वाटर पाइपलाइन कैसा है, अगर आपको वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास करना है तो एक पाइपलाइन डाल देते हैं आप। तो एक मरतबा पाइप डालें तो कंटिन्यू द वाटर विल फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट, वो ऑटोमेट हो जाता मतलब। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा यानी एक जगह है और वो दूसरे को जगह करना है, तो फॉर एग्जांपल आपका डेटा कहाँ पर है, आपका डेटा CSV फाइल्स में है, ओके, और उसको आप कंटिन्यूसली कहाँ से करना है आपको, उसको आपको डेटाबेस में डाल देने का है, ओके, डेटा वेयर हाउस में डाल करना है। तो यहाँ पर आप एक पाइपलाइन बना सकते हैं आप, ओके, ऑटोमेटिकली पाइपलाइन बन जाती है आप। अगर आप बोले कि भाई मेरा डेटा क्लाउड पे, वेबसाइट पे, वेब सर्वर, वेबसाइट, तो उसको आप वेबसाइट बोलो या ऑनलाइन यानी वेब सर्वर बोलो आप, ओके। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप डेटा यहाँ से लेके आप वेबसाइट से लेके आप डेटा वेयर हाउस में दे दे रहे। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, एक पाइपलाइन बना रहे हैं आप। तो यू आर बिल्डिंग अ पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन बनाने का काम किसका रहता, डेटा इंजीनियर का रहता, ओके, डेटा इंजीनियर का रहता। तो ये पाइथन से आप आसानी से कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़े यूज केसेस, थोड़े एग्जांपल दे रहा हूँ पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन के कोर फीचर्स क्या है, ओके। तो आई होप यू आर गेटिंग आइडिया अबाउट पाइथन, पूरा पाइथन का आइडिया आ रहा है आपको, यानी आपको पूरा ओवरऑल आइडिया आ गया तो फिर हम लोग पाइथन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर, ओके। अभी तक मैं जो बताया कुछ उसमें कोई एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन, एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर ये डीप लर्निंग जैसा आपने बताया सर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका ये बताया सर आपने। हेलो। हाँ बोली, गो अहेड पूछ सुनो। हाँ सर, तो सर ये अगर ऐसा हो गया सर कि नहीं, जैसे हम कंप्यूटर को अगर अपनी जबान में बात कर सकते हैं तो सर इससे मैन पावर सर काम हो जाएगा ना आईटी में फिर सर? यार मतलब आप जैसा जो यानी जूनियर आप लोग हो ज्वाइन जाएगा होंगे हो, वो। नहीं 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 ये कौन बात करे, तारिक बात करे, कौन बात करे, तारिक है? जैसा जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सर हम, जी तारिक बात कर रहा हूँ सर। तारिक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा आप जो आप हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सर, हम फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। नहीं 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 तारिक आपको एक बात बताता हूँ, आप हो जाएगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका, ऑलरेडी आ गया। अच्छा मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग इतने लोग अभी कनेक्टेड है, आप लोगों को जीपीटी के बारे में कितनों को पता है, हाउ मेनी पीपल यू नो जीपीटी? मुझे मालूम है सर, मैंने बनाया उसका अकाउंट चैट जीपीटी पे। हाँ तो फिर खत्म, बात खत्म, आ गया, प्रैक्टिकली आ गया, जीपीटी आ गया। और अब जीपीटी से पहला फेस क्या है बोले तो उन्हें क्या करना, मतलब यानी आपकी स्पीड को 10 टाइम्स कर दिया मतलब। तो अगर आप लोग जीपीटी यूज करें तो आप 10 टाइम यानी फास्ट सीख सकते हैं, मतलब 10x हो जाते हैं आप लोग, यू पीपल बिकम 10x, 10 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है आपकी सीखने की, काम करने की, 10 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है आप जीपीटी। तो ये जीपीटी क्या है, मतलब जीपीटी क्या है ये, मतलब ओके, ये जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है वो, ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर ये डीप लर्निंग का मॉडल है, ये ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट डीप लर्निंग। ये ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल है ये। तो इतना पावरफुल हो गया वो कि आपको अगर एक लेटर लिखने का है, एप्लीकेशन लिखना है, आपको पोएम लिखना है, आपको अगर गाना गाना लिखने का है, आपको कोई नज़म लिखना है, आपको कोई भी स्टोरी लिखना है, आपको कोई कंटेंट जनरेट करना है, तो सब कर दे रहा हूँ आपके लिए। खाली आप बोलो कि गिव मी, जनरेट ए कंटेंट फॉर मी, राइट ए लेटर फॉर मी, पूरा लेटर लिख दे रहा है आपको। तो दैट इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका क्वेश्चन समझ के उन्हें आपको आंसर दे दे रहा। अगर आप आगे चल के वो वॉइस में भी आ जाएगा वो, अगर आप डायरेक्ट अगर बात करोगे कि बोलेंगे कि आप मेरे को ऐसा दो, वो तो आ गया ना ऑलरेडी। आपके जो सीरी है, एलेक्सा है, वो भी एक पर्सनल असिस्टेंट है, एआई बेस्ड असिस्टेंट है। तो उससे पहला लेवल आपका मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं आपको, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। मैं पहला लेवल क्या होता बोले तो ये ह्यूमन यानी टैलेंट, ह्यूमन स्किल्स को आगे बढ़ा देता मतलब। तो इसको हमको लेके साथ चलना है, और इसको जो नहीं लेके चलेंगे ना वो लोग पीछे रह जाते मतलब। तो इससे एक इम्पैक्ट ये आएगा सबसे बड़ा आगे चल के थोड़े टाइम के बाद, कि मैन पावर का मतलब उसमें नंबर ऑफ यानी मैन पावर रिड्यूस हो जाते मतलब।
तो मैं आपको ये बताता हूँ, यानी जो 10 काम कर सकते हैं वो दो जना, एक 1 पर्सन कैन डू इट। अब ये जीपीटी यानी जनरेटिंग कोड जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कोड जनरेट करता मतलब वो कोड को वाकई कोड 100% सही है नहीं है, वो कोड कैसा रन करना, उसके लिए तो डेवलपर प्रोग्रामर की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो भी प्रोग्रामर है उनके लिए फायदा है फॉर कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ एक थोड़े टाइम के लिए, ओके, मे बी फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या होगा फ्यूचर में, जो कोड यानी मतलब 10 प्रोग्रामर की जरूरत होती है ना, वो 2 4 5 प्रोग्रामर मिलके काम कर ले सकते हैं, या 2 प्रोग्रामर मिलके काम कर ले सकते हैं वो। तो कोड यानी काफी रिड्यूस हो जाएगा मतलब। तो उसका इम्पैक्ट है। ये बात अभी से नहीं, पिछले 10 साल से हो रही, 10 more than 15 ईयर से बात हो रही कि अगर आपका काम क्रिएटिव नहीं है, अगर आपका काम यानी यू नो फुली रेपिटेटिव है, इजी है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, वो रिप्लेस हो जाएगा, मशीन उसको रिप्लेस कर देगी। अब सेल्फ ड्राइविंग कार रियलिटी है, सेल्फ ड्राइविंग कार ऑलरेडी, आपको मालूम, सेल्फ ड्राइविंग कार 10 साल पहले आ गई है, 10 more than 10 ईयर्स पहले ऑलरेडी सक्सेसफुल है ये। तो ये मॉडल भी यानी बहुत साल पहले आ गया, लेकिन गूगल वाले उसको ओपन नहीं करे, ये ओपन एआई चैट जीपीटी वाले उसको ओपन कर दिए, तो ये पहले से है ऑलरेडी। ओके, तो ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो अब अगर आप बोले कि हर प्रोफेशन को इम्पैक्ट है, इट इज इम्पैक्टिंग एवरी प्रोफेशन। ओके, अगर आप अगर आपका कोई लॉ का केस है, आप इसको आप क्वेश्चन करो, उन्हें आपको आंसर दे दे रहा है। टीचर्स को भी जॉब प्रॉब्लम है, अगर आपका जो टीचर जो आंसर दे सकते हो उससे बेटर आंसर चैट जीपीटी या जीपीटी दे रहा है उसको। ओके, और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी वो भी आपको वो भी गाइड कर रहा है, उसमें भी गाइड कर रहा है उन्हें मैं। तो अब ये टाइम क्या है मालूम, हमारे को इसको लेके साथ चलने का है। ओके, तो यू हैव टू यूज ऑल द इंटेलिजेंट टूल्स, जीपीटी और भी कई एआई के टूल्स हैं, यू हैव टू टेक दोस टूल्स टू परफॉर्म योर टास्क बेटर। यू 10 टाइम स्पीड बनाना आप अपनी। सर तो मैंने अभी SQL के भी सीखा है। मतलब एसक्यूएल के कुछ नहीं सीखा मैंने। सॉरी, मैं आपकी आवाज जरा कटी, फिर से रिपीट करिए। सर एसक्यूएल का मुझे मतलब कुछ नहीं आता था, जो भूल गया मैं, तो चैट जीपीटी के जरिए ही मैंने देखा उसमें कैसे लिखना है क्या नहीं। वेरी गुड। आप अगर आप बोले ना मेरे को एसक्यूएल का कोड लिख दो, अगर आप बोले आई वांट टू नो हाउ विच एम्प्लॉय इज गेटिंग हाईएस्ट सैलरी, विच इज द सेकंड एम्प्लॉय, और कंपनी में कौन एम्प्लॉय है जिसके मतलब पूरा मेरे को सेल्स का अमाउंट, तो वो बोल दे तो पूरा कोड दे दे रहा आपको, पूरा एसक्यूएल क्वेरीज दे दे रहा आपको। ओके, यस सर, जरूर। तो आप अभी आपका ना टाइम कैसा है मालूम, अभी अब हमको बहुत ही एक्टिव रहना है, और हमको ये टूल्स को यूज करके वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, और हमको मल्टीपल टूल्स सीख के बहुत आगे बढ़ना है हमारे को। यानी मतलब अभी यहाँ पर क्या है, यानी आपका स्किल्स को यानी बहुत पॉलिश करना पड़ेगा, यानी मतलब ओके, और उसको लेके किस तरह से आप फास्ट डिलीवर कर सकते, तो उसको यानी लेके साथ करना पड़ेगा। और अगर कोई बोला बंदा मैं ये इसको ये यूज नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली उनका लॉस है मतलब। ओके, तो अब आप लोग, तो मैं आप लोगों को आज बोलने ही वाला था, मैं तो सबको आई एम टेलिंग एवरीबडी नाउ, एवरी डे यू पीपल हैव टू यूज दिस टूल। अच्छा, ये जीपीटी के अलावा और भी कई टूल्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन के लिए, सीखने के लिए कई एआई टूल्स हैं, आप ऑनलाइन में जाके मालूम कर सकते हैं। मैं भी आपको इंशाल्लाह आई ट्राई टू गिव यू सम ऑफ द लीस्ट। तो ये टूल्स को आप यूज करके आगे बढ़िए, यूज ओके, मेक यूज ऑफ दिस टूल्स। अब आजकल ना टीचर्स है, अगर डॉक्टर्स है, नर्सेस है, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, दे ऑल मस्ट यूज दिस टूल्स। अगर वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये टूल्स यूज नहीं करेंगे ना, तो फिर वो लोग भी आउटडेटेड हो जाते, फिर somebody else can do their job much better। ठीक है, तो अभी तक आप, तो अभी आप वो मतलब ये कि भाई ये टूल्स हमारा जॉब रिप्लेस करेंगे, नहीं है। ये टूल्स हमारी स्पीड को बढ़ा दे, 10x कर दिया आपको, 10 टाइम स्पीड, यानी मतलब राइट नाउ वी हैव टू बी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी स्पीड 10x हो गई। ओके, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके अगर ये टूल्स यूज करेंगे, तो फिर द रिजल्ट विल बी एक्सेलेंट एक्चुअली। ओके, और ये टूल्स अभी 100% एक्यूरेट नहीं है, उसको 100% एक्यूरेट होने के लिए अभी थोड़ा और महीने और थोड़े साल लगेंगे। ओके, तो जब तक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड यू प्ले दैट रोल एक्चुअली। ओके, तो आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंटेलिजेंस को वो करें, तो डोंट वरी इंशाल्लाह। तो सर एमबीआर भी उसमें जाता है क्या? क्या चीज बोलिए फिर से? एमबीआर MBR, MBR का फुल फॉर्म क्या है समझाने में? मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड बोल के आता है ना सर एक, वैसे जीपीटी की तरह।
मास्टर वो अब बहुत सारे आ गए यार, तो वो भी शायद एआई का होगा अब तो, यानी मैं तो बोलता हूँ एवरीडे कोई ना कोई नया प्रोग्राम आ रहा। लेकिन ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हाईली सक्सेसफुल है, इसलिए वर्ल्ड एवरीबडी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, तो ये तो बहुत पावरफुल है। और उसके अलावा आप जो बोल रहे, सर बहुत ह्यूमन सारे। फील है सर इसमें। कम अगेन। हाँ सर। हाँ सर, इसमें ह्यूमन फील लग रहा सर, चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हुए ऐसा लग रहा है कि सामने से कोई मतलब पर्सन रिस्पॉन्स दे रहा सर। जैसा आप अलेक्सा वगैरह जो गूगल असिस्टेंट है सर, उनके पास मेमोरी भी नहीं थी, मतलब उनसे एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन अगर करें अपन तो उसको पूरा हाँ, या समझाना मेमोरी है पड़ता था। ये जो मैं इनको वर्ड अपन एक ये टॉपिक पे कंटिन्यू क्वेश्चन कर सकते थे। नहीं, ये जो वर्ड ट्रांसफॉर्मर बुलाने में, तो ये ट्रांसफॉर्मर डीप लर्निंग का पार्ट है। और डीप लर्निंग में क्या करता है, उन्हें मेमोरी को मेंटेन करता है मतलब। तो मेमोरी का मतलब आप जो लास्ट क्वेश्चन करे, उससे पहले का क्वेश्चन करे, उसकी वो सीक्वेंस को मेंटेन करता है उन्हें। तो अगर आप एक क्वेश्चन करे, फॉर एग्जांपल अगर आप बोले कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे, या अगर आप बोले कि भाई मेरे को कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन बोले कि भाई अगर आप बोले कि भाई ये करियर मेरे लिए, फिर उसका नाम देने की जरूरत नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट को याद रखेगा कि भाई आप पूछ रहे कि भाई शुड आई लर्न डेटा एनालिटिक्स, और इन टुडेज इकोनॉमी विच स्किल इज बेट गुड। तो पिछले क्वेश्चंस को पूरा याद रखे बोलता है वो मेमोरी, तो इट मेंटेन्स मेमोरी। तो ये ट्रांसफॉर्मर की स्पेशलिटी क्या है बोले तो, ये पूरा ये ने मेमोरी को स्टोर करता, और पूरा प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी विद प्रीवियस पूरा कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देता। वो दैट्स अ पावरफुल लाइक ए ह्यूमन बीइंग। और वो पूरा रियल डेटा पे ह्यूमन मतलब उस पे ह्यूज टेराबाइट के डेटा पे उसको ट्रेन करे। इट्स अ वेरी बिग, वेरी बिग। और आपको मालूम वो क्रैश हो रहा, बहुत सारा क्रैश हो रहा, मतलब एवरी आवर इट इज गेटिंग क्रैश, यानी मतलब मिलियंस ऑफ पीपल्स आर कनेक्टिंग ना। तो बहुत बट इट इज एक्सेलेंट टू लर्न एक्चुअली। ओके, तो आप लोग उसका यूज करिए, सीखिए। आप पाइथन को भी आप जबरदस्त सीख सकते हैं, अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, सीखने का टाइम आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो you ask good questions and you will learn how to ask good questions. Asking question is also an art. आप जितने अच्छे क्वेश्चन करेंगे उतना जवाब वो देगा आपको। ओके, और मल्टी लेवल पे देगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग पाइथन के बारे में डिस्कस करें। और दूसरी ये बात है कि अब ये जो पाइथन की जो पाइथन का वर्जन है, हम लोग कौन सा वर्जन यूज करेंगे। तो देखिए पाइथन दो पॉपुलर हुए मतलब। ओके, एक यानी 2.6 भी बहुत ही पॉपुलर था, यानी ये बहुत ही पॉपुलर है। 2.6, 2.6, 2.7 बहुत पॉपुलर हुआ है, यानी ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन अभी नहीं है, अभी मतलब यानी नो मोर सपोर्ट। ओके, नो मोर सपोर्टेड। अभी है 3.x, ये करंट। ओके, तो इसके अंदर 3.x में अलग अलग आया, जैसे फॉर 3.10 हम यूज करेंगे, और लेटेस्ट बोलेंगे तो 3.11। ओके, तो ये ऐसा आ गया 3.11.1 आगे आएंगे तो ये मेजर, माइनर और माइक्रो, ये तीन लेवल आ जाते हैं इसके। ओके, मेजर, माइक्रो, ओके, माइनर, माइक्रो, ये तीन लेवल हो जाते हैं। तो ये 3.11, तो हम लोग 3.10, 3.11 अलग अलग यूज करेंगे, और इसके फीचर्स भी। तो ये पाइथन की जो फीचर्स है ना, ये फीचर डिपेंड्स ऑन द वर्जन, डिपेंड्स ऑन वर्जन, रिलीज पे डिपेंड करते। तो हमको जितना अच्छा लेटेस्ट यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा ओल्डर करना चाहिए, विच इज मोर स्टेबल। द ओल्डर रिलीज इज मोर स्टेबल देन द करंट, क्योंकि इसके अंदर एक याद रखना आप, एक बग्स भी बहुत रहते हैं मतलब। बग्स मतलब इंटरनल एरर को बोलते हैं, इंटरनल एरर। तो उसके अंदर कोई इश्यू रहते, कोड काम नहीं करता, एरर आते उसके अंदर, तो उसको बग्स बोलते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन रहते हैं उसके अंदर बग्स रहते हैं, उसलिए ज्यादा लेटेस्ट वर्जन नहीं करना चाहिए, थोड़ा ओल्डर वर्जन पे काम करना है। तो इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट वर्जन आता है उस पर काम नहीं करते, यानी प्रोडक्शन लाइव काम थोड़ा अर्लियर वर्जन पे करते, जो स्टेबल। तो इंडस्ट्री में स्टेबल वर्जन यूज करते हैं, ये इंडस्ट्री में कभी भी दे यूज स्टेबल वर्जन। तो स्टेबल वर्जन मतलब लिटिल ओल्डर, मतलब अर्लियर वर्जन, अर्लियर। ओके, अर्लियर। तो वो अर्लियर का कितना स्टेप अर्लियर रहता है, 1 स्टेप अर्लियर, 2 स्टेप अर्लियर, 3 स्टेप अर्लियर, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई ये कंपनी में लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज करे, इसका वर्जन ये मतलब ये था कि भाई दे डोंट वांट टू फिक्स बग्स, दे वांट ए स्टेबल वर्जन। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आप लोग।
अब यानी पाइथन में हम लोग जब कोडिंग करेंगे तो पाइथन में हम कोडिंग करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, कैसा, हाउ मतलब यानी कहाँ पर लिखेंगे, वेर। तो उसके लिए आपको एक एडिटर चाहिए, यू नीड एडिटर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में, हर प्रोग्रामिंग में आईडीई आता, IDE। तो आईडीई यूज करते। तो आईडीई एक टूल है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, तो सॉरी, आईडीई। ओके, तो आईडीई का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है आपको जहां पर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली इज ए टूल। ओके, बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है, ये सॉफ्टवेयर टूल। ओके, सॉफ्टवेयर टूल फॉर राइटिंग कोड, फॉर राइटिंग, डिबगिंग मतलब एरर फिक्स करना, डिबगिंग, टेस्टिंग, व्हाट, कोड। आप कोई भी कोड के लिए बेटर है। तो अब इसके लिए पाइथन के आईडी कौन से, फॉर पाइथन, आईडी फॉर पाइथन तो बहुत सारे हैं। हम लोग जो ज्यादा यूज करेंगे वो है जुपिटर नोटबुक। लास्ट में भी शायद आप कभी देखेंगे जुपिटर नोटबुक। लेकिन देर आर अदर बहुत, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर पाइचाम है, हम लोग ये भी देखेंगे आगे चल के, पाइचाम है, स्पाइडर है। आप विजुअल कोड भी यूज कर सकते हैं, विजुअल विजुअल। कोड भी यूज कर सकते हैं आप। मगर ये सर ये जुपिटर नोट, पांडा और नमपाई भी ये चाहिए सर, इसके आईडी है क्या? नहीं, वो अलग है। मैं अच्छा। बताता हूँ अभी क्या पहले। जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे हम लोग के। और तो अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जुपिटर नोटबुक से करेंगे। तो जुपिटर नोटबुक की स्पेशलिटी क्या मालूम, ये एक इंटरैक्टिव यानी इन्वायरमेंट है जहां पर आप कोड लिख के इंटरैक्टिवली रन कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक ये एनाकोंडा का है, एनाकोंडा, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, और डेवलप बाय ए कंपनी कॉल, इसकी जो कंपनी है, डेवलप बाय कंटिन्यूम कंटिन्यूम एनालिटिक्स। ओके, कंटिन्यूम एनालिटिक्स बोल के एक कंपनी है, तो वो लोग डेवलप करे। और इसका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है anaconda.com पे जाके आप पूरी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक को। आप लोग कल देख ली शायद, नहीं कल की क्लास में, लास्ट क्लास में एक क्लास इंस्टॉलेशन की हुई थी क्या आप लोग, नहीं हुई, नहीं, नहीं सर। नो सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो यही प्रॉब्लम। फर्स्ट है सर क्लास। ये पहला है, ओके ना। तो ये एनाकोंडा का वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जुपिटर नोटबुक की स्पेशलिटी क्या है बोले तो, ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसा कि फॉर एग्जांपल गूगल वाला, दे आर प्रोवाइडिंग दिस जुपिटर नोटबुक, बट उसको क्या करे, जुपिटर कोलैब बोला, वो कोलैब, जुपिटर कोलैब, कोलैबोरेटरी प्रोजेक्ट, ऑनलाइन फ्री। तो ये मतलब ये क्या है, आप यानी जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन। ओके, यानी ये मतलब जुपिटर नोटबुक ही चाहिए, जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन में, जुपिटर नोटबुक अवेलेबल है आपको। हु इज गिविंग यू, गूगल पीपल। तो ये गूगल कोलैब में जाके आप यहाँ पर भी ये कर सकते हैं। तो मैं ये चीजें आपको बता देता हूँ मैं आपको। ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू पीपल राइट नाउ, मैं आपको ले जा रहा हूँ। पहला आप ये देख सकते हैं ना, तो सबसे पहला ये है python.org। ये देखिए मैं यहाँ पर ये वेबसाइट दिया है python.org, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको, आप पाइथन को डाउन कर सकते हैं। 3.11 देखिए, डाउनलोड फॉर विंडोज। ये आप मैक ओएस पे कर सकते हैं, लाइनक्स पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप ये मत इंस्टॉल करो। ये अगर पाइथन ये मतलब हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, हम लोग एनाकोंडा का करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, पूरी पाइथन की कम्युनिटी का सपोर्ट है, फोरम, आप यहाँ पर क्वेश्चन भी रेस कर सकते हैं। ओके, ये पूरा पाइथन का एक ऑफिशियल साइट है। ये दूसरा मैं आपको ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर एनाकोंडा पे, anaconda.com। anaconda.com से पर्टिकुलरली हम आपको यूजफुल क्या डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है आपको। ये देखिए, आप लोग दिख रहा है ना आपको, यू पीपल कैन सी राइट, यस सर। एनाकोंडा। ये देखिए एनाकोंडा में आप कहाँ चले जाना मालूम, आप यहाँ पर एनाकोंडा में, ये अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये दिख रही है डाउनलोड। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करिए आप। ये बाय डिफॉल्ट विंडोज पे आ रहा। तो यहाँ पर 3 आइकॉन है, विंडोज, एप्पल, मैक या लिनक्स। तो ये बाय डिफॉल्ट विंडोज है, या आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये एप्पल भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो खैर हमको मैक पे नहीं जाना है, विंडोज पे जाना है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड सेलेक्ट क्लिक करा मैं, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा। देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं अभी। तो ये डाउनलोड यहाँ से करिए आप लोग, यहाँ से डाउनलोड करिए। उसके बाद फिर
और ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, आपसे वो बेसिक क्वेश्चन करेगा और बहुत आसानी से आप इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ तो आप लोग एनाकोंडा पे जाके डाउनलोड सेलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो, पहले वो डाउनलोड होगा, फिर वो इंस्टॉलेशन के थोड़े क्वेश्चन करेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको वो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब इंस्टॉल होने के बाद उसको कैसा रन करना वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि जुपिटर नोटबुक ब्राउजर में रन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, ये याद रखिए आप। जुपिटर notebook runs in the browser. Okay, Jupyter notebook runs in the browser. अब लोग थोड़े कंफ्यूज क्या होते हैं, ब्राउजर वो तो इंटरनेट बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत है। आपको अगर लोकली भी अगर कोई प्रोग्राम है तो वो ब्राउजर में रन कर सकते हैं आप बगैर इंटरनेट के। ओके, ब्राउजर बेस्ड है ब्राउजर। तो ब्राउजर में आप क्रोम यूज करो, यानी तो माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर यूज कर सकते हैं आप। ओके, मोजिला यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, तो कोई भी ब्राउजर यानी लेटेस्ट वर्जन का सपोर्ट करता हो तो ब्राउजर में रन होगा। हाँ, ब्राउजर में रन होगा वो। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटरनेट होना जरूरी है, बगैर इंटरनेट के लोकली अगर आप इंस्टॉल कर लिए ना तो वो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये आप लोग खुद कर ले सकते हैं डाउनलोड आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको थर्ड यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, मैं गूगल कोलैब पे। देखिए यहाँ पर मैं गूगल में टाइप करूँ गूगल कोलैब। कोलैब का मतलब कोलैबोरेटरी प्रोजेक्ट है ये। मैं यहाँ पर इसको पहला ऑप्शन सेलेक्ट, अभी आप लोग इमीडिएटली जा सकते हैं मेरे साथ, न्यू नोटबुक। देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए ये आ रहा है थोड़ा, ये जुपिटर नोटबुक कैसे रन हो रहा, गूगल क्लाउड पे ये आ गया। देखिए ये आपको यहाँ पर टाइटल दिख रहा, तो यहाँ पर यानी मतलब ये मैं डेमो 1 बोल के दे रहा हूँ मैं। और इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या, IPYNB, इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर ही लिख के बताता हूँ आपको, ये कमेंट्स है, ये कमेंट्स, आप कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं आप। ये हैश देखिए, तो ये ये .IPNB का फुल फॉर्म क्या मालूम, IPYNB का फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। ये एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन फॉर जुपिटर नोटबुक। तो जनरली पाइथन का एक्सटेंशन, पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहता मालूम, पाइथन प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता, .py रहता। लेकिन ये नोटबुक का एक्सटेंशन क्या है, .IPY नोटबुक है। ठीक है, और ये जो है आपको जो दिख रहा करंट, ये जो दिख रहा ना कर्सर जो है, ये सेल है। ओके, ये करंट लोकेशन, ये जो लोकेशन जो पॉइंट कर्सर है, सो दिस इज अ सेल। तो हियर यू कैन रन कमांड, हियर वी कैन रन व्हाट, कमांड्स, कमांड रन कर सकते हैं आप, या आप कोई कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स लिखो आप। ओके, आप यहाँ पर हेडिंग्स दे सकते, मैथ के इक्वेशंस वगैरह दे सकते, इवन यू कैन रन वीडियो, इमेजेस रन कर सकते हैं। ये इट्स ग्रेट फॉर इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन। नोटबुक इज ग्रेट फॉर ओके इंटरैक्टिविटी के लिए। हाँ, तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये कमांड देना है, आपको कोई मैसेज देने का है, चलिए बिस्मिल्लाह, पहला मैं लिख रहा हूँ या प्रिंट कमांड या आउटपुट। ओके, मैं आपको दिख रहा हूँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन विथ गूगल कोलैब यूजिंग, ये इंटरनल यूजिंग क्या है, यूजिंग व्हाट, जुपिटर नोटबुक ही है, नोटबुक यूजिंग गूगल कोलैब विच इज नथिंग बट जुपिटर इंटरनली वो जुपिटर नोटबुक ही है वो। ओके, देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर आप ये रन टाइम में जाके आप रन भी कर सकते हैं। ये देखिए कमांड, देखिए, यानी तो आप कंट्रोल इंटर भी मार के रन कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया, आउटपुट आया, देखिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन विद गूगल कोलैब यूजिंग जुपिटर नोटबुक। आप लोग को दिख रहा ना, यू कैन सी राइट। यस सर। अभी आप लोग मेरे साथ आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खाली गूगल पे जाओ, गूगल कोलैब मारिए, आप नोटबुक करें। अब यहाँ पर आप कमांड रन शुरू कर दे सकते हैं आप डायरेक्ट, प्रिंट कमांड, ये वो। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में मेमोरी में कोई डेटा, अब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता, मैं ये बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका यानी कोई भी नेम स्टोर करना है, कुछ भी आपको डेटा स्टोर करना है तो कैसा करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आपको कोई, फॉर एग्जांपल प्राइस है, प्राइस कितना है, 100 रुपीज। ओके, 100.10। ओके,
तो यानी आपको कोई भी चीज आगे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, यानी मतलब ये क्या है, प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ से फॉर एग्जांपल सम आइटम, प्राइस ऑफ आइटम कुछ भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ कीबोर्ड कितने का प्राइस है, 500 रुपीज। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 10। ओके, इस तरह से आप सिंपल देखिए ना। तो यहाँ पर आपको ये वेरिएबल का डेटा ये है ना, ये क्या है ये मालूम, ये फ्लोट है, ये पॉइंट है, देखिए ये इंटीजर है, देखिए। तो यहाँ पर आपको देने की जरूरत, इसलिए इसे डायनेमिकली टाइप बोलते हैं इसको। तो आप ये वेरिएबल देने, तो यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स रहता है ना, सिंटैक्स बोले तो जो रूल को बोलते हैं, रूल। तो सिंटैक्स में कैसा रहता है इसका रूल, पहले आप वेरिएबल का नाम देना, वेरिएबल का नाम देके इक्वल देके उसका वैल्यू बोलो या डेटा बोलो। ओके, वेरिएबल नेम इक्वल टू ये डेटा, वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता, और वो मेमोरी का जो एड्रेस रहता वो नाम ये रहता, ये वेरिएबल का नाम क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। तो कहां पर जाके स्टोर होता है, स्टोर्स इन मेमोरी मतलब रैम, कंप्यूटर की मेमोरी रैम में। और उसका वेरिएबल का नाम क्या है, उसका एड्रेस है, कंटेनर बोल सकते हैं आप उसको, एड्रेस बोल सकते हैं। तो आप जब भी आपको वो यूज करना है तो आप डायरेक्ट उसका यानी, अब आप ये कीबोर्ड का प्राइस है, क्वांटिटी है, उसको मतलब आपको टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल अमाउंट कितना देना है, तो फिर से वो वेरिएबल को यूज करके आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ कीबोर्ड, मैं स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर, तो प्राइस ऑफ कीबोर्ड, ओके, प्राइस ऑफ कीबोर्ड टाइम इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पर प्रिंट कर दो आप, द प्राइस, द अमाउंट, ये आपको सेम डबल कोट्स में ऐसा मैसेज आएगा। और फिर यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए विदाउट कोट आप प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आपको ये डबल कोट या दोनों तरफ सिंगल कोट देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आपको ऐसा सिंगल कोट दे दीजिए दोनों तरफ, या दोनों तरफ डबल कोट दीजिए। और यहाँ पर कॉमा देखिए वेरिएबल। अब मैं कंट्रोल इंटर मार के रन कर रहा हूं मैं, ये देखिए आ गया, देखिए। सो द अमाउंट इज 5001, क्योंकि टोटल 10 है क्वांटिटी। तो ये सेल में आप इस तरह से कमांड लिख के आप वो कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा पहला आज का प्रोग्राम था ये वेरिएबल। अब हम लोग आज एक पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिए कि पाइथन के फीचर्स वगैरह डिस्कस करें, प्रैक्टिकली भी करके देख लिए हम लोग। और आप लोग एक काम करिए, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल, अगर कोई बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं कर सके ना, ये एनाकोंडा के साइट पे से जाके, तो जब तक आप ये गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन में जाके। ओके, तो बट रिकमेंडेड क्या है, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो फिर गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हैं। और ये गूगल कोलैब की जो फाइल है ना, आप इसको सेव कहाँ, ये अपने गूगल ड्राइव में सेव कर ले सकते हैं आप। ये देखिए सेव, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए सेव कॉपी इन ड्राइव, गूगल ड्राइव। उसको आप डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन में भी ला ले सकते, और उसको कन्वर्ट करके .py भी बना ले सकते। तो हम काफ़ी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के सेशन के हद तक इतना काफ़ी है। अभी हम लोग वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप के बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना है। मैं एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया। अब ये कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, हम एक प्रोग्राम कैसा लिखते हैं, उसके अंदर क्या है। और एक बात मैं बता दूं, तो हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके, चलिए, एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन? आप लोग को पूरा ओवरऑल पिक्चर आया? डिड यू गेट द ओवरऑल पिक्चर? कुछ कंफ्यूजन था तो क्वेश्चन करिए। यस, कैन वी कंटिन्यू टुमारो नेक्स्ट? यस सर। ओके सर। ओके, यहाँ पर नो क्वेश्चन, अच्छा चैट बॉट, ओके, तो ठीक है फाइन। तो यहाँ पर